नेक्स्ट द regime used in non-Hodgkin lymphoma is what? It is CHOP regime. कौन सी regime यूज होती है? CHOP regime यूज होती है non-Hodgkin lymphoma में. Maximum long acting sulfonamide is what? It is sulfadoxine. Maximum long acting sulfonamide amongst sulfadiazine, sulfamethoxazole, sulfacetamide and sulfadoxine is sulfadoxine. ठीक है. Next, only beta-lactam antibiotic that can be used in patients having severe allergy to penicillin or cephalosporin is what? बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक जो कि आप उन पेशेंट्स में दोगे जिनमें पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन के लिए एलर्जी है, दैट इज एज़ट्रियोनैम. ठीक है, एज़ट्रियोनैम. नेक्स्ट, 50-year-old woman with breast carcinoma is treated with multiple cycles of doxorubicin as a part of combination chemotherapy. 2 years later, after completion of the therapy, she presents with progressive exertional dyspnea, orthopnea, and pedal edema. Echocardiography reveals dilated cardiomyopathy with reduced ejection fraction. The oncologist explains that this adverse effect is related to the cumulative dose exposure and may appear even after discontinuation of therapy. जो कार्डियोमायोपैथी है विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वो बाद में भी दिखाई देगी, ये बोल रहा है oncologist. Which pharmacological intervention could have been used to reduce the risk of this toxicity? Answer is dexazosane. ठीक है, डेक्सरैक्सोजेन. ठीक है, डेक्सरैक्सोजेन जो है वो यूज़ किया जाता है. एंथ्रासाइक्लिन जनरेट्स सेमीक्विनॉन फ्री रेडिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेड एज dilated cardiomyopathy and congestive heart failure. This adverse effect is cumulative dose dependent and may be present even after discontinuation of the therapy. Cardiotoxicity can be reduced by using dexrazoxane. ठीक है, dexrazoxane यूज करके. It is free radical and an scavenger and an iron chelator. ठीक है. Next, a patient is receiving high dose of methotrexate for choriocarcinoma develops severe mucositis and bone marrow suppression. The oncologist administers a drug that reduces methotrexate toxicity to normal cells without interfering with its anti-tumor action. What drug is being used? यहाँ पे leucovorin यूज किया जाता है. Leucovorin, LEUCOVORIN. The toxicity of methotrexate to normal cells can be reduced by administration of N10-formyl tetrahydrofolic acid, that is folinic acid, or leucovorin, COVORIN. This strategy is known as leucovorin rescue. ठीक है. नेक्स्ट, पेशेंट रिसीविंग हाई डोज ऑफ साइक्लोफॉस्फोमाइड. पेशेंट जो है वो रिसीव कर रहा है हाई डोज ऑफ साइक्लोफॉस्फोमाइड फॉर मैलिग्नेंसी एंड डेवलप्स पेनफुल हेमेटूरिया. He will develop painful hematuria. The treating physician anticipates this adverse effect and prescribes a drug along with aggression hydration to prevent it. ठीक है, एग्रेसिव हाइड्रेशन और एक ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है टू प्रिवेंट दिस पेनफुल हेमैच्यूरिया. विच मेटाबोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनफुल हेमैच्यूरिया एंड विच ड्रग विल प्रिवेंट इट? एक्रोलिन जो होते हैं वो मेटाबोलाइट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनफुल हेमैच्यूरिया, एक्रोलिन. ठीक है, और मेसना जो होता है वो ड्रग होता है दैट प्रिवेंट्स इट. मेसना इज द ड्रग दैट प्रिवेंट्स इट. साइक्लोफॉस्फोमाइड इज एक्टिवेटेड टू एल्डोफॉस्फोमाइड विच डिग्रेड्स इनटू एक्रोलिन. साइक्लोफॉस्फोमाइड एक्टिवेट होता है एल्डोफॉस्फोमाइड में जो कि डिग्रेड करता है इनटू एक्रोलेन. एक्रोलेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. एक्रोलेन responsible for hemorrhagic cystitis and this adverse effect can be reduced by vigorous hydration by using of MESNA, MESNA drug. Next, a patient with large solid tumor is planned for chemotherapy using a drug that acts on both resting and dividing tumor cells. ऐसा ड्रग है जो कि दोनों resting और dividing tumor cells के ऊपर एक्ट कर रहा है. The oncologist prefers this drug because it has a significant proportion of tumor cells but are not actively proliferating. ठीक है, क्योंकि ये ड्रग जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है लेकिन उनकी प्रोलिफरेशन को एक्टिवली रोकता नहीं है. विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस? आंसर इज अल्काइलेटिंग एजेंट्स. जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं दे आर रिलेटेड ड्रग्स. ठीक है, वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं. सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं एंड दस दे कैन एक्ट ऑन बोथ रेस्टिंग एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स. ये दोनों रेस्टिंग सेल्स और डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं बाय अल्काइलेटिंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स ऑन डीएनए बेसिस. ठीक है, बाय अल्काइलेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स ऑन द डीएनए बेसिस. नेक्स्ट, अ 55-year-old मैन विद ल्यूकीमिया. 55-year-old मैन है ल्यूकीमिया के साथ. स्टार्टेड विद द कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी. द ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्स दैट each cycle of chemotherapy will kill a constant fraction of tumor cells. Each cycle of chemotherapy will kill a constant fraction of tumor cells rather than a constant number. Constant fraction tumor cells का kill करेगा rather than a constant number. Even though the
tumor's burden decreases with each cycle. This principle explains why multiple cycles of chemotherapy are required. ठीक है, which pharmacological concept best explains this phenomena? Answer is log kill hypothesis best explain करती है इसको. Based upon murine, that is L1210 leukemia model, cytotoxic drugs with first order kinetics. Cytotoxic drugs with first order kinetics, that is a constant proportion of cells that are killed with given dose rather than a constant number of cells. मतलब एक constant proportion of cells मारे जा रहे हैं rather than a number of cells. ठीक है, this concept is known as log kill hypothesis. Next, a patient receiving first line anti-tubercular drugs or anti-tubercular therapy develops joint pain and asymptomatic hyperuricemia. जॉइंट पेन हो जाती है और एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया दिखा जाता है इसमें फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की यूज़ के साथ. द ड्रग रिस्पॉन्सिबल इज पर्टिकुलरली एक्टिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट्स. ड्रग जो कि रिस्पॉन्सिबल है दैट इज पर्टिकुलरली एक्टिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट्स एंड अगेंस्ट स्लोली मल्टीप्लाइंग बैसिलाई. ठीक है, एंड इज वर्किंग अगेंस्ट स्लोली मल्टीप्लाइंग बैसिलाई. विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ड्रग? इट इज़ एन एक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरिया. ये जो ड्रग है पायराजेनामाइड, इट इज़ वीकली बैक्टीरिसाइडल but more active against slowly replicating bacteria in the acidic media and is effective only against intracellular myobacteria. Hyperuricemia is common but usually asymptomatic होता है and this is not indication to stop the therapy. ठीक है, hyperuricemia कोई indication नहीं होती to stop the therapy of the anti-tubercular drug. Next, a 55-year-old patient with tuberculosis reports with difficulty in distinguishing green color and complains of blurred vision. ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है. ठीक है, एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्लर्ड विजन. आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ थेरेपी फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुई उसकी. सेवरल वीक ऑफ थेरेपी के बाद फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुई. एग्जामिनेशन सजेस्ट ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट. एग्जामिनेशन में ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट देखी गई है. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रग इज करेक्ट? इट इनहिबिट्स एर्बिनोसाइल ट्रांसफरेज. इथैम्ब्यूटॉल एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो कि इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ एर्बिनोग्लैक्टिन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एर्बिनोसाइल ट्रांसफरेज. एर्बिनोग्लैक्टिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एर्बिनोसाइल ट्रांसफरेजेस. इट कॉज डोज डिपेंडेंट एंड रिवर्सिबल ऑप्टिक न्यूराइटिस विद लॉस ऑफ ग्रीन कलर विजन. डोज डिपेंडेंट और रिवर्सिबल ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है विद लॉस ऑफ ग्रीन कलर विजन. नेक्स्ट, 28-year-old woman being treated for pulmonary tuberculosis is also taking oral contraceptive pills. 28 साल की वुमेन है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रही है. आफ्टर 2 months ऑफ थेरेपी शी प्रेजेंट्स विद एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. विच फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बेस्ट एक्सप्लेन दिस आउटकम? देखो, इंडक्शन ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स रिफैम्पिसिन का अपना काम रहता है. रिफैम्पिसिन इज एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स एंड एनहांसेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, इट एनहांसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. फीमेल्स on the oral contraceptives should either increase the dose or use an alternative method of contraception. ठीक है, क्योंकि वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी ले रही है साथ में. नेक्स्ट, a patient with tuberculosis falls to respond to isoniazid despite good compliance. Patient with tuberculosis fails to respond to isoniazid despite good compliance. Drug susceptibility testing reveals high level of drug resistance. Mutation in which of the gene is most likely to be responsible for this form of drug resistance in the patient? Answer is CAT gene is responsible. CAT gene के AT gene उसकी म्यूटेशन जब हो जाती है तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाती है. रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड occurs due to mutation in CAT-G और INHA. CAT जीन या फिर INHA की म्यूटेशन की वजह से ये रेजिस्टेंस होती है. म्यूटेशन इन CAT-G is responsible for high level resistance, whereas the mutation in INHA confers to cross resistance to ethionamide. ठीक है, it will confer to cross resistance in ethionamide. Next, a 42-year-old man with newly diagnosed pulmonary tuberculosis is started on first-line anti-tubercular therapy. After a few weeks, he complains of tingling and numbness of his feet. On evaluation, it was found that he is a slow metabolizer of the drug that is responsible for the adverse effect. ठीक है, which pharmacological property best explains the presentation? जेनेटिक कंट्रोल ऑफ एसिटाइलेशन. ठीक है, यहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जो पेशेंट है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है. तो आइसोनियाजिड इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड. It is metabolized by acetylation that is genetically controlled. Slow acetylators are predisposed to toxicity, particularly peripheral neuritis. ठीक है,
स्लो एसिटाइलेटर जो होते हैं वो प्री डिस्पोज हो जाते हैं टू टॉक्सिसिटी, पर्टिकुलरली पेरिफेरल न्यूराइटिस को वो प्री डिस्पोज होते हैं. नेक्स्ट, अ पेशेंट रिसीविंग प्रोलॉन्ग्ड एमिकासिन थेरेपी फॉर सीवियर इन्फेक्शन कंप्लेन्स ऑफ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस. प्रोलॉन्ग एमिकासिन थेरेपी है, सीवियर इन्फेक्शन है, कंप्लेन कर रहा है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस का. ऑडियोमेट्री कन्फर्म्स कॉकलियर डैमेज. ऑडियोमेट्री जब कन्फर्म की गई तो उसमें कॉकलियर डैमेज हुआ है. विच फार्माकोलॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस एडवर्स इफेक्ट. एमिकासिन क्या करती है, वो ऑडिटरी टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉकलियर डैमेज हो जाता है, कॉकलियर टॉक्सिसिटी हो जाती है, अमीनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है एंड ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, जो कि लार्जली इरिवर्सिबल होता है. ओके. Next, a patient with methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection is treated with linezolid. After 10 days of therapy, laboratory tests revealed thrombocytopenia. Thrombocytopenia, pharmacological monitoring should have been done during this treatment. तो किस चीज़ की pharmacological आपको मैनेजमेंट करनी चाहिए? It is complete blood count आपको करना चाहिए, ठीक है. Linezolid can cause thrombocytopenia and neutropenia. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया लिनेजोलिद जो है वो कॉज करवाता है. एंड ब्लड काउंट शुड बी मॉनिटर्ड इफ द ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी एक्सीड्स 1 वीक. अगर 1 वीक से ज़्यादा थेरेपी दे रहे हो तो ब्लड काउंट आपको चेक करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD इज रिसीविंग सिसाप्राइड. क्या रिसीव कर रहा है? सिसाप्राइड रिसीव कर रहा है. ही इज लेटर प्रिस्क्राइब्ड एन एंटीबायोटिक फॉर अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्स QT प्रोलॉन्गेशन एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया. QT प्रोलॉन्गेशन हो जा रही है और वेंट्रिकुलर एरिथमिया दिखाई दे रहा है. विच एंटीबायोटिक इज मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंजाइम इनिबिशन? दैट इज क्लैरिथ्रोमाइसिन. क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये इनिबिट कर देते हैं CYP3A4 को. CYP3A4 को इनिबिट कर देते हैं, लीडिंग टू QT प्रोलॉन्गेशन व्हेन कंबाइंड विद द ड्रग्स लाइक सिसाप्राइड, एजिथ्रोमाइसिन डज नॉट इनिबिट CYP एंजाइम्स. ठीक है, जब इसको कंबाइन किया जाता है विद द ड्रग्स लाइक सिसाप्राइड तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कम्प्लीटली इनिबिट नहीं करता CYP एंजाइम को. तो सिसाप्राइड आपको इसके साथ देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी अपने पास ये. नेक्स्ट, अ 48-year-old पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज. 48 साल का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ सफर कर रहा है. रिक्वायर्ड्स ट्रीटमेंट विद अ टेट्रासाइक्लिन फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन. ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है विद टेट्रासाइक्लिन फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन. द क्लिनिशियन वांट्स टू अवॉइड ड्रग एक्यूमुलेशन एंड वर्सनिंग रीनल फंक्शन इज शुड बी देयर. ठीक है, इज देयर वर्सनिंग रीनल फंक्शन. ठीक है, क्लिनिशियन अवॉइड कर रहा है ड्रग को क्योंकि उसका रीनल फंक्शन जो है वो वर्स करता जा रहा है और ड्रग एक्यूमुलेट करता जा रहा है बॉडी के अंदर. विच टेट्रासाइक्लिन इज फार्माकोलॉजिकली सेफेस्ट इन दिस पेशेंट. इस पेशेंट में जिसमें रीनली इंपेयरमेंट होती जा रही है और एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है उसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन दोगे. ठीक है, द ऑल टेट्रासाइक्लिन्स आर एक्सक्रीटेड प्राइमरली इन यूरिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन. जितने भी हमारे टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, ये सारे हमारे प्राइमरली यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन. डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो एक्सक्रीटेड होता है इन द फीसिस. डॉक्सीसाइक्लिन इट इज एक्सक्रीटेड इन फीसिस एंड दस कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर. ये फीसिस में एक्सक्रीट होता है और इसको यूज़ किया जा सकता है इन द केसेस ऑफ रीनल फेलियर. नेक्स्ट, अ प्रीमेच्योर नियोनेट बीइंग ट्रीटेड फॉर सीरियस इन्फेक्शन डेवलप्स वॉमिटिंग. प्रीमेच्योर नियोनेट है, ट्रीटेड फॉर सीरियस इन्फेक्शन, उसमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाती है, साइनोसिस, hypotension and cardiovascular collapse is also there. Cyanosis, hypotension and cardiovascular collapse is also there. Laboratory investigations reveal reduced red blood cell count. ठीक है, the adverse reaction is attributed to accumulation of the administered drug. Which pharmacological defect in neonates is responsible for this condition? Adverse reaction में क्या होगा कि जितना भी जो एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसमें जो एक्यूमुलेशन हो गई है उसकी वजह से रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल के काउंट हो गए. तो किस चीज़ की वजह से ये कंडीशन आई है न्यूनेट के अंदर? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटिक ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज. न्यूनेट्स आर deficient in hepatic glucuronide transferase resulting in accumulation of chloramphenicol and leading to gray baby syndrome. कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है. That is characterized by cyanosis and cardiovascular collapse. Next, a 62-year-old man with septicemia is started on gentamicin. 62-year-old man है, septicemia हो रखा है, gentamicin आप दे रहे हो. Instead of dividing the total daily dose into multiple administrations, the physician prescribes the entire dose once daily. Multiple daily dose में तोड़ने से बजाय प्रिस्क्रिप्शन ने फिजिशियन ने एक ही बारी में डोज दे दी. द डोजिंग स्ट्रैटेजी इज सिलेक्टेड टू मैक्सिमाइज एफिकेसी एंड मिनिमाइज टॉक्सिसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस प्रैक्टिस? ठीक है, इट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग विद प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करवा रहे हैं वहाँ पे विद प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट.
Aminoglycosides exhibit concentration dependent killing and have prolonged post antibiotic effect. Therefore they are administered as a single daily dose. ठीक है, aminoglycosides को एक single daily dose में दिया जाता है. Next, a patient with pseudomembranous colitis has been prescribed vancomycin orally instead of intravenously. What are the pharmacological reasoning for choosing the oral route rather than the intravenous route? तो oral route को choose करने का ये वो रहता है कि आप हाई लोकल कंसंट्रेशन कोलन में पहुंचा सकते हो. ठीक है, वैंकोमाइसिन इज यूज्ड ओरली टू ट्रीट सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस बाय क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल. सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल कॉज करता है जब आप एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रहे होते हो, जो आप नॉर्मली ऐसे खा लेते हो एंटीबायोटिक, उसकी वजह से. बिकॉज इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. वैंकोमाइसिन जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और हायर कंसंट्रेशन इसकी कोलन तक पहुँचती है. ओके, इसीलिए वैंकोमाइसिन को आप ओरली देते हो rather than giving it in a IV route. Next, select the drug which directly inhibits the HIV reverse transcriptase without the need for intracellular activation by phosphorylation. इनमें से किस ड्रग को इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन बाय फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए रहती? आंसर इज नेविरापिन. नेविरापिन इज अ न्यूक्लियोसाइड अनरिलेटेड कंपाउंड which directly inhibits the HIV reverse transcriptase without the need for intracellular phosphorylation. Next, which influenza drug can cause severe hypocalcemia? कौन सा इन्फ्लुएंजा का ड्रग जो है वो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर सकता है? देखो 4 ड्रग्स हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ज़नामाविर, पैरामाविर, ओसेल्टामाविर और फॉस्कारनेट. ये चारों जो है वो इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. लेकिन फॉस्कारनेट जो है, फॉस्कारनेट इज़ यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट वायरल इन्फेक्शंस ओनली. ठीक है, इट कैन इंड्यूस हाइपोकैल्सीमिया एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इन द बॉडी. नेक्स्ट, विच एंटी HPV ड्रग इज हाइएस्ट बैरियर टू रेजिस्टेंस? हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटी ड्रग जो है वो उसकी हाईएस्ट बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस किस में होती है? टेनोफोविर. टेनोफोविर हैज़ अ हाईएस्ट बैरियर टू रेजिस्टेंस, मेकिंग इट द प्रेफर्ड चॉइस फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन. टेनोफोविर. नेक्स्ट, विच ड्रग इज कंसिडर्ड शीट एंकर इन लेप्रोसी ट्रीटमेंट? डैप्सोन. डैप्सोन जो ड्रग है दैट इज कंसिडर्ड अ शीट एंकर in leprosy treatment. Dapsone, a sulfone, it has been linked primarily anti-leprotic drug since 1940s and remains a key component of multi-drug therapy MDT. Next, the drug of choice for penicillinase producing Neisseria gonorrhea urethritis is what? The drug of choice for penicillinase producing Neisseria gonorrhea urethritis is cefitraxone. ठीक है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है PPNG या फिर पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग Neisseria gonorrhea यूरेथ्राइटिस के अंदर जो दैट इज सेफिट्रैक्सोन. नेक्स्ट, द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिप्थीरिया इज व्हाट? कौन सा ड्रग जो है वो प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिप्थीरिया में यूज़ किया जाता है? एरिथ्रोमाइसिन प्रोफिलैक्सिस ऑफ एक्यूट स्टेज ऑफ डिप्थीरिया में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और कुछ स्टेजेस में एरिथ्रोमाइसिन को पेनिसिलिन के ओवर भी हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब पेनिसिलिन यूज़ नहीं करना तो उससे प्रेफर हम एरिथ्रोमाइसिन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल टेट्रासाइक्लिन फॉर यूज इन अ पेशेंट विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन is what? It is doxycycline. Tetracycline जो होते हैं क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं that are primarily eliminated by kidneys and thus required caution in the patients with impaired renal function. Among tetracycline, जितने भी tetracycline हैं उनमें से doxycycline ही एक ऐसा ड्रग होता है that is suitable for the patients because of its unique pharmacokinetics. Next, clavulanic acid is combined with amoxicillin. क्यों? देखो clavulanic acid जो होता है वो इनहिबिट कर देता है बीटा लैक्टमेजेस को जो कि अमोक्सिसिलिन को तोड़ने का काम कर रही होती है. अब बीटा लैक्टमेजेस नहीं बची हैं तो अमोक्सिसिलिन ज़्यादा टाइम तक अपना काम कर लेता है. ठीक है, दिस एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन इज अबाउट 8 टाइम्स मोर एक्टिव दैन कार्बेनिसिलिन. ठीक है, 8 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होती है दैन कार्बेनिसिलिन. नेक्स्ट, क्लॉक्सिसिलिन इज इंडिकेटेड इन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. क्लॉक्सिसिलिन इज इंडिकेटेड इन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई. ठीक है, क्लॉक्सिसिलिन आप कहाँ देते हो? जहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई का इन्फेक्शन होता है. इट्स ओनली इंडिकेशन फॉर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स एंड इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई. नेक्स्ट, द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग. बीटा लैक्टम के एंटीबायोटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग, दैट इज सिफेलोस्पोरिन होते हैं, मोनोबैक्टम होते हैं, कार्बेनिपेनैम्स होते हैं. सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बेनिपेनैम्स, ये सारे हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं. Cephalosporin, monobactam and carbapenems. ठीक है, नेक्स्ट, द रिस्क ऑफ kernicterus in patient with unconjugated hyperbilirubinemia increases with the use of what? रिस्क ऑफ kernicterus इस पेशेंट में इंक्रीज करता है विद द यूज ऑफ सल्फोनामाइड्स. ठीक है, सल्फोनामाइड्स कैन डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स एंड कैन कॉज kernicterus in neonates.
न्यूनेट्स में कर्निकटेरिस कॉज करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द एंटी माइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद द डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटी माइक्रोबियल है जो कि डीएनए के फंक्शन को, दैट इज द डीएनएज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की गायरेज एक्टिविटी को कम करता है इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट, ड्रग यूजफुल इन ब्रेस्ट कैंसर इज व्हाट। 4 ड्रग दिए हैं, टेमॉक्सिफेन, सिप्रोटेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, क्लोराम्ब्यूसिल। टेमॉक्सिफेन जो होता है दैट इज यूजफुल इन ब्रेस्ट कैंसर। टेमॉक्सिफेन इज यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूट्रोपीनिया ड्यू टू कैंसर कीमोथेरेपी इज व्हाट। न्यूट्रोपीनिया हो गया है कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से, तो उसमें आप कौन सा ड्रग दोगे? आंसर इज फिलग्रास्टिम। फिलग्रास्टिम दिया जाता है। फिलग्रास्टिम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। नेक्स्ट, इमिटिनैब प्राइमरली एक्ट्स बाय व्हाट। इमिटिनैब प्राइमरली एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करवा देता है इमिटिनैब। इमिटिनैब इनहिबिट्स द टायरोसिन काइनेज लिंक्ड विद ABL BCR फ्यूजन, PDGF रिसेप्टर एंड c-KIT, ठीक है। ABL BCR फ्यूजन, PDGF रिसेप्टर और c-KIT, इन सभी में जो है इमिटिनैब इनमें इनहिबिशन शो करवा देता है, ठीक है। मतलब ये होने नहीं देता इन चीज़ों को। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हुकवर्म इन्फेस्टेशन इज व्हाट। हुकवर्म का इन्फेक्शन है, वर्म्स का इन्फेक्शन है, तो एल्बेंडाजोल, ठीक है। हुकवर्म्स आर एनक्लाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनेल या फिर नेक्टर अमेरिकानस। दीज आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स दैट कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करते हैं ड्यू टू ब्लड लॉस। एल्बेंडाजोल वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इन द पैरासाइट। Albendazole works by inhibiting the microtubule formation in the parasite, leading to energy depletion and death. Next, drug of choice for neurocysticercosis is what? Neurocysticercosis का drug of choice जो होता है that is albendazole. Albendazole is preferred drug of choice because it kills Taenia solium larvae that is cysticercae in the brain. Taenia solium का जो larvae होता है that is cysticercae जो brain में present होता है वो उसको मार देता है, ठीक है। It works by inhibiting the microtubule synthesis. It is usually given along with the corticosteroids like dexamethasone to reduce the inflammation caused by dying cysts, ठीक है। Given along with corticosteroids like dexamethasone to reduce inflammation caused by dying cysts. Next, potassium iodide is used in treatment of what? Potassium iodide, it is used in the treatment of sporotrichosis. Sporotrichosis is a subcutaneous fungal infection caused by Sporothrix skin SCHENCKII. It is also known as Rose Gardner's disease, ठीक है। स्पोरोट्राइकोसिस को रोज गार्डनर्स डिजीज भी बोलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड ओरल सॉल्यूशन हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड स्पेशली फॉर क्यूटेनियस और लिम्फोक्यूटेनियस फॉर्म्स, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड वो लिम्फोक्यूटेनियस फॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है, ट्रेडिशनली यूज किया जाता था। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्यूनिन एक्सेप्ट व्हाट। क्यूनिन जब आप यूज करते हो मलेरिया के लिए, ये तो उसमें हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और एरिथमिया हो जाते हैं। एरिथमिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया आर 3 इफेक्ट्स ऑफ क्यूनिन, ठीक है। लेकिन बुल्स आई रेटिनोपैथी नहीं होता है, ठीक है। बुल्स आई रेटिनोपैथी इज नॉट कॉज ऑफ क्यूनिन। क्यूनिन से नहीं होता, ये क्लोर क्यूनिन से होता है या फिर हाइड्रोक्लोर क्यूनिन से होता है। बुल्स आई रेटिनोपैथी इज टिपिकली कॉज बाय क्लोर क्यूनिन। क्लोर आ रहा है इसमें, क्लोर क्यूनिन आ रहा है या फिर हाइड्रोक्लोर क्यूनिन आ रहा है। स्पेशली विद द लॉन्ग टर्म यूज इट अफेक्ट्स द रेटिना इन द रिंग लाइक पैटर्न। ये अफेक्ट करता है रेटिना को इन द रिंग लाइक पैटर्न अराउंड द मैक्यूला। रेटिना को रिंग लाइक पैटर्न में अराउंड द मैक्यूला अफेक्ट करता है। क्यूनिन ऑन द अदर हैंड कॉजेज चिंकोनिज्म, ठीक है। चिंकोनिज्म कॉज करता है क्यूनिन, जिसमें टिनिटस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है। टिनिटस, हेडेक एंड डिजीनेस आर देयर। हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है क्यूनिन। हीमोलिसिस कॉज करता है, ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी कॉज करता है। क्यूटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन कर देता है। सो क्यूनिन डज नॉट कॉज बुल्स आई रेटिनोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट, द अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज व्हाट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। Reverse transcriptase is an enzyme that is used by retrovirus in like HIV. It is synthesizing DNA from an RNA template. इसीलिए इसको बोलते हैं RNA dependent DNA polymerase, ठीक है। RNA के ऊपर डिपेंड करके वो DNA बना रही है। नेक्स्ट, ज़िदोवुदीन कॉजेज व्हाट। ज़िदोवुदीन जो होता है वो न्यूट्रोपीनिया कॉज करवाता है, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया, ज़िदोवुदीन इज एन NRTI. NRTI is ज़िदोवुदीन that causes bone marrow suppression leading to neutropenia, anemia, leukopenia. This is dose dependent and most common with prolonged use in advanced HIV. Next, the drug of choice for acyclovir resistant herpes is what? Acyclovir resistant herpes की बात हो रही है, तो इसमें फॉस्कारनेट दिया जाता है। Drug of choice for acyclovir resistant herpes simplex virus infection is फॉस्कारनेट।
एसाइक्लोविर रिक्वायर्स एक्टिवेशन बाय वायरल एंजाइम थाइमिडीन काइनेज। एसाइक्लोविर को एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है बाय वायरल एंजाइम दैट इज थाइमिडीन काइनेज। थाइमिडीन काइनेज इन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ herpes सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें म्यूटेशन या फिर लॉस जो होता है इस एंजाइम का, इट रेंडर्स एसाइक्लोविर इनइफेक्टिव। ठीक है, वहाँ पे एसाइक्लोविर काम में नहीं आ पाती, इसलिए फॉस्कार्नेट जो है वो इस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर देता है बाय डायरेक्टली इनहिबिटिंग द वायरल डीएनए पॉलीमरेज। फॉस्कार्नेट विल डायरेक्टली इनहिबिट द वायरल डीएनए पॉलीमरेज थ्रू बाइंडिंग टू द पायरोफॉस्फेट बाइंडिंग साइट, without the need for activation by thymidine kinase. Next, drug of choice for chronic hepatitis B is what? Drug of choice for chronic hepatitis B virus infection is lamivudine. Lamivudine was one of the first drugs of choice for using against chronic hepatitis B virus infection. Next, avian influenza is treated by what? Avian influenza is treated by oseltamivir. ठीक है, oseltamivir जो होता है that is a neuraminidase inhibitor that blocks the release of new influenza virus particles from the infected cells. ठीक है, इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए इंक्लूडिंग एवियन स्ट्रेन्स लाइक H5N1 स्ट्रेन्स या फिर H7N9 स्ट्रेन्स। इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन जैसे कि H5N1 और H7N9 उन दोनों के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट भी काम करता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रायाजोल्स इज व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रायाजोल इज बाय इनहिबिटिंग द अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ट्रायाजोल जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, इटोकोनाजोल हो गया, वोरिकोनाजोल हो गया, दीज इनहिबिट द फंगल एंजाइम लैनोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मेथाइलेज। ठीक है, जो कि साइटोक्रोम P450 की एंजाइम होती है। दिस ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ लैनोस्टिरॉल टू अर्गोस्टिरॉल। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन लीडिंग टू इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड फंगल सेल डेथ और फंगल इनहिबिशन। ठीक है, ये करवाता है जो भी हमारे ये ट्राई हमने बात की अभी पीछे। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस इज व्हाट? एस्परजिलोसिस दैट इज ऑल्सो इन्वेजिव। ठीक है, उसमें हम वोरिकोनाजोल देते हैं, वोरिकोनाजोल VORICONAZOLE। It is a broad spectrum triazole antifungal that inhibits the ergosterol synthesis by targeting the lanosterol 14 alpha D methylase. It has a superior activity against Aspergillus species and better survival outcomes compared to amphotericin B, making it the first line treatment for invasive aspergillosis. Next, oral contraceptive pills, that is OCP failure by rifampicin is due to what? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का रिफैम्पिसिन से इसलिए फेलियर रहता है क्योंकि वो इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको ज़्यादा जल्दी बॉडी से बाहर निकाल देगा रिफैम्पिसिन, इसलिए उसका फेलियर हो जाता है। जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम है वो फेल कर जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टेरलाइजिंग एक्शन इज शोन बाय विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? मैक्सिमम स्टेरलाइजिंग एक्शन जो है वो पायराजिनामाइड शो करता है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट डॉर्मेंट और सेमी डॉर्मेंट बैसिलाई इन द एसिडिक एनवायरनमेंट of caseating granulomas within the macrophages. It helps in shortening the TB therapy by killing persistent bacteria that is also bacilli that other drugs may not reach. ठीक है, इसलिए it will show the strong sterilizing activity. Next, the treatment for leptomatous leprosy is what? Leptomatous leprosy की क्या ट्रीटमेंट रहती है? रिफैम्पिसिन दोगे, उसके साथ दो चीज़ें और देंगे, डैप्सोन एंड क्लोफाजिमाइन। ठीक है, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन एंड डैप्सोन RCD। ठीक है, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन और डैप्सोन, ये किसमें? लेप्रोमेटस लेप्रोसी में दी जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कैन बी सेफली यूज इन सीवियर रीनल फेलियर? सीवियर रीनल फेलियर में कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो सेफली यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, दैट इज रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इज प्राइमरली मेटाबोलाइज इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल, ये बाइल में रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, इसलिए डोज एडजस्टमेंट जो है बहुत कम नीडेड होती है क्योंकि ज़्यादातर तो काम लिवर नहीं करना है। ठीक है, अगर रीनल इम्पेयरमेंट भी हो जा रही है फिर भी लिवर अपना काम कर रहा है, तब भी रिफैम्पिसिन जो है वो आराम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस मेक्स इट सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन इन TB पेशेंट्स विद रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कैन कॉज ऑप्थेल्मोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? इथैम्ब्यूटॉल होता है, इथैम्ब्यूटॉल may lead to optic neuritis. इथैम्ब्यूटॉल may lead to optic neuritis which presents as a decreased visual acuity. इथैम्ब्यूटॉल में आपको डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है। ठीक है, और लॉस ऑफ रेड ग्रीन कलर, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। समटाइम्स द कलर स्कोटोमाज आर ऑल्सो देयर समटाइम्स। नेक्स्ट, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन नहीं इराडिकेशन प्रोग्राम है। इट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1983 में नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था दैट हैड द गोल ऑफ इराडिकेटिंग द डिजीज बाय टर्निंग ऑफ द सेंचुरी। मतलब
2000 तक उसे ख़त्म करने का गोल था, लेकिन नहीं हुआ 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट, मेसना इज़ गिवन विद साइक्लोफॉस्फेमाइड टू डू व्हाट। देखो मेसना जो होता है वो जो साइक्लोफॉस्फेमाइड का एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, दैट इज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, दैट इज गिवन विद साइक्लोफॉस्फेमाइड टू एमोलिरेट द हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट, द एंटीफंगल ड्रग इनहिबिट्स लैनोस्टिरॉल अल्फा 14 अल्फा डी मिथाइलेज। ऐसा एंटीफंगल ड्रग जो कि इनहिबिट करता है लैनोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज को, उसका नाम क्या है? आंसर इज फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है वो इनहिबिट करता है लैनोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज, fungal cytochrome P450 involved in ergosterol synthesis. Inhibition leads to disruption of the cell membrane formation and making the antifungal effect. ठीक है, नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेमेटोड्स इज व्हाट? नेमेटोड्स के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस दोगे एल्बेंडाजोल। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेजिक्वेंटल, इवरमेक्टिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो यू विल गो फॉर एल्बेंडाजोल फॉर नेमेटोड्स. And albendazole is a drug of choice for many nematode infection. It works by inhibiting the microtubule formation and leading to impaired glucose uptake and death of the parasite. Next, antihelminthic, which acts by flaccid paralysis of worms, is which one? Antihelminthic जो कि act करता है by flaccid paralysis of worms, that is piperazine. ठीक है, पिपराजीन जो होता है वो हाइपरपोलराइजेशन करवा देता है ऑफ द एस्कैरियस मसल बाय गाबा एगोनिस्ट एक्शन, ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, क्लोराइड चैनल ओपन करवा देगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। पिपराजीन इज सेफ एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग, इट इज़ ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। एक चीज़ याद रखनी कि ड्रग्स कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस आर इवरमेक्टिन एंड पिपराजीन। ठीक है, इवरमेक्टिन और पिपराजीन दोनों ही ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रग्स कॉजिंग स्पैस्टिक पैरालिसिस कराने वाले जो ड्रग होते हैं दैट आर पायरेंटेल, पैमोएट एंड लीवामिजोल, पैमोएट और पायरेंटल, PYRANTEL. नेक्स्ट, ओरली एडमिनिस्टर्ड एंटी काला आजार ड्रग इज व्हाट? ओरली एडमिनिस्टर्ड जो एंटी काला आजार ड्रग होता है दैट इज मिल्टेफोसाइन. ठीक है, मिल्टेफोसाइन, इट्स अ ओरली एडमिनिस्टर्ड एंटी काला आजार ड्रग. ड्रग्स यूज फॉर काला आजार आर पैरेंटल, दैट इज एम्फोटेरिसिन B या फिर पैरोमोमाइसिन IM. ठीक है, सोडियम स्टिबुग्लूकोनेट IV IM, सोडियम स्टिबुग्लूकोनेट IV IM पैरेंटली यूज होता है. एम्फोटेरिसिन B, पैरोमाइसिन, सोडियम स्टिबुग्लूकोनेट, दैट इज IM और IV. ठीक है, ओरली सिर्फ एक ही दिया जाता है इसमें काला आजार में, दैट इज मिल्टेफोसाइन. ठीक है, मिल्टेफोसाइन बोल सकते हो. नेक्स्ट, क्लोरक्विनिन एक्ट्स ऑन व्हाट? क्लोरक्विन जो होता है वो एक्ट करता है ऑन द ब्लड साइजॉन्ट. ठीक है, क्लोरक्विन विल इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्लड साइजॉन्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट, एमेंटाडीन एक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? एमेंटाडीन क्या करता है? ये इन्फ्लुएंजा ड्रग में हम यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंजा की एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है ये. इट इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन. ठीक है, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस. इट एक्ट्स एट अ अर्ली स्टेप अनकोटिंग द वायरल रेप्लिकेशन. अर्ली स्टेप पे एक्ट करेगा अनकोटिंग द वायरल रेप्लिकेशन. नेक्स्ट, ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी विद HIV इन्फेक्शन इज व्हाट? ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी हमारे पास होते हैं, दैट इज जिडोवोडिन, इंडिनाविर और लैमिवोडिन, ये तीनों सेफ होते हैं. ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स इन प्रेगनेंसी रिकमेंडेड एंड ऑल्टरनेटिव उसके साथ दिया हुआ है. जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं उसमें रिकमेंडेड में आता है जिडोवोडिन और उसका ऑल्टरनेटिव है डाइडेनोसिन. ठीक है, जिडोवोडिन दे सकते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव डाइडेनोसिन दे सकते हैं. लैमिवोडिन दे सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव होता है M-ट्राइसिटाबाइन इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ लैमिवोडिन. फिर उसके बाद आता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दैट इज नेविरापिन. ठीक है, नेविरापिन आप दे सकते हो, इट्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इन प्रेगनेंसी. ओके, फिर आते हैं PLS. ठीक है, PLS आप दे सकते हो नेल्फिनाविर, इंडिनाविर, और PLS मतलब हो सकता है एडिशन हो गई. नेल्फिनाविर या इंडिनाविर दोगे, सेक्यूनाविर दे सकते हो. सेक्यूनाविर का जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज लोपेनाविर या फिर रिटोनाविर. ठीक है, नेक्स्ट, कोबिसिस्टैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ विच एंटी रेट्रोवायरल ड्रग? कोबिसिस्टैट हम देते हैं L-वाइटाग्राविर के लिए देते हैं. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं. L-वाइटाग्राविर requires boosting of an additional drug, that is cobicistat. It's a pharmacokinetic enhancer that inhibits the CYP3A4 enzyme as well as certain intestinal transport proteins or ritonavir.
ठीक है, ये रिटोनाविर दे सकते हैं या फिर कोबिसिस्टिस्टैट दे सकते हैं इसके साथ, एल वाइटाग्राविर के साथ। नेक्स्ट एमीट्राइसिटाबाइन इज क्लासिफाइड एज व्हाट? एमीट्राइसिटाबाइन जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। एमीट्राइसिटाबाइन इट्स एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI, इट्स अ सिंथेटिक सिटिडीन एनालॉग। ठीक है, ये सिंथेटिक सिटिडीन एनालॉग है। मेजर साइड इफेक्ट्स आर लैक्टिक एसिडोसिस एंड लिवर डिसफंक्शन। मेजर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लिवर डिसफंक्शन होता है। नेक्स्ट नेवेरापिन इज व्हाट? नेवेरापिन हमारे पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, वो हमने पीछे अभी HIV वाले पेशेंट में भी दिया था। नेवेरापिन बाइंड्स डायरेक्टली टू द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉजिंग कन्फर्मेशनल चेंज एंड इनहिबिटिंग द वायरल DNA सिंथेसिस। ठीक है, डायरेक्टली बाइंड कर जाता है टू HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ नेवेरापिन, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन NRTI? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, नेवेरापिन, एफिवारेंस, डेल्विरिडीन, ये तीनों जो है वो हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नेवेरापिन है, एफिवारेंस है और डेल्विरिडीन है। रिटोनाविर जो होता है वो NRTI नहीं होता। ठीक है, रिटोनाविर इज अ प्रोटीज इनहिबिटर। रिटोनाविर हमारे पास एक प्रोटीज इनहिबिटर है दैट इज used in the treatment of HIV or AIDS। ठीक है, नेक्स्ट द ड्रग ऑफ चॉइस इन शिस्टोसोमियासिस इज व्हाट? शिस्टोसोमियासिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? शिस्टोसोमियासिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहता है दैट इज द प्राजिक्विंटल। प्राजिक्विंटल जो होता है वो कैल्शियम परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है इन द शिस्टोस्टोम। ठीक है, मेम्ब्रेन्स कॉजिंग पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ द वर्म्स। प्राजिक्विंटल क्या कराता है? पैरालिसिस और डेथ ऑफ द वर्म्स करा देता है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द मेजर स्पीशीज ऑफ शिस्टोसोमिया एंड इज गिवन एज अ सिंगल डे ओरल ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लोरोक्विन इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लोरोक्विन की जो होती है दैट इज अबव 1300 लीटर। ठीक है, 1300 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्लोरोक्विन की। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोक्विन इज वेरी हाई, typically above 1300 liters. Chloroquine has a very high volume of distribution because it extensively binds to the tissues, especially in the melanin-rich tissues. Especially किसके साथ बाइंड करता है? इन द मेलानिन रिच टिश्यूज के साथ बाइंड करता है। एंड accumulates in the organs like liver, spleen, lungs and kidneys. लिवर, स्प्लीन, लंग और किडनी के अंदर accumulate कर जाता है जाके। This extensive tissue binding explains long half life and slow elimination of this drug। ठीक है, नेक्स्ट fastest acting erythrocytic schizontocidal drug for malaria is what? Fastest acting erythrocytic schizontocidal drug for malaria is artemisinin. Artemisinin acts rapidly on asexual blood staging parasites by generating free radicals through the interaction between the heme iron inside the parasite। ठीक है, this leads to the parasite membrane death and damage। ठीक है, इससे क्या होता है? पैरासाइट की मेम्ब्रेन जो होती है वो खराब हो जाती है और उसके साथ डैमेज भी हो जाता है जो मेम्ब्रेन है उसको, तो उसकी वजह से पैरासाइट की डेथ हो जाती है। मेकिंग द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन सीवियर फॉर्म ऑफ फैल्सिपारम मलेरिया यूजली यूज इन कॉम्बिनेशन विद ACT। आर्टेमिसिनिन यूज़ किया जाता है अगेंस्ट दिस मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स एक्सेप्ट व्हाट? 4 ऑप्शन दिए, सेक्यूनाविर, एटाजानाविर और एम्प्रेनाविर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है एबाकाविर। एबाकाविर जो है वो प्रोटीज इनहिबिटर नहीं है, बाकी सेक्यूनाविर, एटाजानाविर, एम्प्रेनाविर ये सारे प्रोटीज इनहिबिटर हैं। एबाकाविर is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor that is NRTI used in HIV treatment. It works by inhibiting the reverse transcriptase enzyme and preventing the viral DNA synthesis. Next, all are protease inhibitors except what? Protease inhibitor कौन कौन से? रिटोनाविर प्रोटीज इनहिबिटर है, एम्प्रेनाविर इज अ प्रोटीज इनहिबिटर, नेल्फिनाविर इज अ प्रोटीन इनहिबिटर, लेकिन टेनोफोविर इज नॉट अ प्रोटीज इनहिबिटर। टेनोफोविर इज अ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। NRTI है ये, nucleotide reverse transcriptase inhibitor, tenofovir. It works by inhibiting the reverse transcriptase by blocking HIV DNA synthesis. Protease inhibitors on the other hand block the viral DNA protein cleavage and it completely मतलब एक completely different stage पे काम कर रहे होते हैं protease inhibitors in the HIV। ठीक है, the basis of combining ritonavir with the lopinavir is what? क्या बेसिस है ऑफ कंबाइनिंग रिटोनाविर विद लोपिनाविर? देखो CYP3A4 इनहिबिशन हो जाती है बाय रिटोनाविर। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि ये एंजाइम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर मेटाबोलाइजेशन ऑफ द लोपिनाविर, तो अब लोपिनाविर मेटाबोलाइज इजीली नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोपिनाविर के लेवल्स को इंक्रीज कर देगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाफ लाइफ लोपिनाविर की इंक्रीज कर जाएगी, जिससे एनहेंस्ड एंटीवायरल इफेक्ट लोपिनाविर का दिखेगा। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक बूस्टर।
Next, mechanism of action of protease inhibitors is what? Mechanism of action of protease inhibitors is by prevention of maturation of new viral particles. Protease inhibitors prevention कराते हैं of the maturation of the new viral particles. HIV protease cleaves the viral polyproteins into functional proteins during virus assembly. ठीक है. Protease inhibitors block the enzyme leading to release of immature non-infectious virus particles, thus halting the HIV replication process. ठीक है. प्रोटीज इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं एंजाइम को, दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ इमेच्योर नॉन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स दैट आर हॉल्टिंग द HIV रेप्लिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इस तरीके से करते हैं. मतलब बेसिकली ये वायरल पोलीप्रोटीन्स और फंक्शनल प्रोटीन्स को क्लीव करा देते हैं, तोड़ देते हैं ड्यूरिंग वायरस असेंबली या रेप्लिकेशन. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कॉक्सीडियोमाइकोसिस इज व्हाट? कॉक्सीडियोमाइकोसिस जो भी है, इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस करेगी. फ्लूकोनाजोल देते हैं इसमें. ठीक है, व्हाट डू वी गिव? फ्लूकोनाजोल. फ्लूकोनाजोल इट इज़ अ ट्राइazole एंटीफंगल. ट्राइazole एंटीफंगल है फ्लूकोनाजोल. इट इनहिबिट्स द अर्गोस्टिरॉल सिंथेसिस डिसरप्टिंग द फंगल सेल मेम्ब्रेन्स. अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देता है, डिसरप्टिंग द फंगल सेल मेम्ब्रेन्स. इट इज़ यूज्ड ओरली यूज़ किया जाता है इन द प्राइमरी पल्मोनरी और डिससेमिनेटेड और नॉन मेनिंजियल कॉक्सीडियोमाइकोसिस. Next, the mechanism of action of oseltamivir is what? Oseltamivir का mechanism of action क्या रहता है? It is a neuraminidase inhibition. ठीक है, मतलब क्या करवाता है? neuraminidase inhibition करवाता है. Oseltamivir is a neuraminidase inhibitor that blocks the release of new influenza viruses from the infected cells. It is thus effective against both seasonal and avian influenza. ये seasonal influenza और avian influenza के against काम कर लेता है. Example H5N1 और H7N9 के against काम करता है. Oseltamivir. ठीक है. नेक्स्ट, फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग ऑन द लैप्रा बैसिलाई इज व्हाट? लैप्रा बैसिलाई पे फास्टेस्ट एक्टिंग जो ड्रग होता है दैट इज रिफैम्पिसिन. रिफैम्पिसिन इनहिबिट्स द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. रिफैम्पिसिन क्या करता है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करवा देता है, लीडिंग टू रैपिड किलिंग ऑफ M. लेप्रे. ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है उसकी रैपिड किलिंग करवा देगा. अ सिंगल डोज ऑफ दिस रिफैम्पिसिन can kill over 99% of the viable bacilli, which is why it is the key component of the multi-drug therapy, that is MDT, for both paucibacillary and multibacillary leprosy. Paucibacillary और multibacillary leprosy दोनों में दिया जाता है. Next, anti-tubercular drug which reaches inside the caseous material is what? कौन सा anti-tubercular drug है जो कि caseous material के अंदर जाके पहुंच के वहाँ पे एक्शन करता है? दैट इज रिफैम्पिसिन. रिफैम्पिसिन इज लिपोफिलिक, अलोइंग इट टू पेनिट्रेट इनटू डीपर नेक्रोटिक केशियस टिश्यूज वेयर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मे रिजाइड. नेक्स्ट, द ड्रग दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा इज व्हाट? कौन कौन से ड्रग जो होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा में? जितने भी हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उनमें से मेन ड्रग जैसे कि आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, ये तीनों जो हैं वो जो प्लेसेंटल बैरियर उसको क्रॉस कर जाते हैं. The first line anti-tubercular drugs are able to cross the placental barrier and reach the fetus. Okay. However, they are generally considered safe in pregnancy, as untreated tuberculosis pose a greater risk than the drugs themselves. ठीक है, तो इनको मतलब दे दिया जाता है प्रेगनेंसी में. आइसोनियाजिड जो है वो क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटा को, गिवन विद पायराडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6, टू प्रिवेंट न्यूरोटॉक्सिसिटी इन द बेबी एज वेल एज इन द मदर. विटामिन B6 के साथ दिया जाता है आइसोनियाजिड को. Rifampin को it crosses the placenta and can cause mild neonatal bleeding, so vitamin K may be given at birth to the neonate. ठीक है, और मदर को भी देने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है मदर की भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाए उससे. फिर पायराजिनामाइड आती है तीसरी चीज़. इट ऑल्सो क्रॉसेज द प्लेसेंटा यूज्ड व्हेन बेनिफिट्स आउटवे रिस्क. जब बेनिफिट आउटवे कर देते हैं रिस्क को तब हम पायराजिनामाइड को देते हैं, स्पेशली इन द एक्टिव केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट, आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? आइसोनियाजिड की हमने अभी बात की तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6. ठीक है, कौन सा विटामिन? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये. ठीक है, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है वो पेराडॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर देता है, B6 के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करवा देता है, जिससे कि B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर. फिर इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मैनिफेस्टेशन एज टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट. ठीक है. नेक्स्ट, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन रिजल्ट इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पायराडॉक्सिन? तो अभी फिर से हमारा आइसोनियाजिड ही आंसर आया. आइसोनियाजिड कैन फॉर्म अ कम्प्लेक्स विद पायराडॉक्सिल फॉस्फेट reducing the activity of active vitamin B6 which is essential for the nerve function. This leads to peripheral neuropathy presenting as tingling sensation, numbness or burning sensation in hands or feet. Next,
CHAULMOOGRIC acid, coulmogric acid is employed in treatment of leprosy is a what? It's a cyclic fatty acid. ठीक है, cyclic fatty acids का example है coulmogric acid. ठीक है, that is found in the coulmograph oil used in treatment of leprosy containing cyclopentenyl ring. Next, in multi-drug therapy of leprosy, rifampicin is given how many times? ठीक है, जब हम MDT कर रहे हैं तो rifampicin हम मंथली देते हैं. ठीक है, द मंथली डोजिंग इंश्योर्स हाई किलिंग इफेक्ट विच मिनिमाइजेज द साइड इफेक्ट्स एंड इंश्योर्स द कंप्लायंस थ्रू सुपरवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. कि बंदे ने खाया कि नहीं खाया, उसको मुंह के सामने बिठा के खिलानी पड़ती है ताकि ये रेजिस्टेंट डिजीज ना बन जाए, ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट, मैच द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर नहीं, मैच द फॉलोइंग टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग की टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हम क्या क्या देते हैं? ठीक है, अगर एलोप्यूरानॉल अगर हम दे रहे हैं तो इट विल इनहिबिट द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. एलोप्यूरानॉल विल इनहिबिट द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. ठीक है, रेस्ब्यूरिकेस जो है वो रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवाता है. रिकॉम्बिनेंट यूरेज ऑक्सीडेज को इनहिबिट कराता है रेस्ब्यूरिकेस. फिर मेसना आता है तीसरी चीज़. मेसना इज़ यूज टू प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. मेसना इज़ यूज टू प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. फिर आता है ल्यूकोवोरिन. ल्यूकोवोरिन जो होता है दैट इज़ यूज्ड एज टू रिप्लीट द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ठीक है, रिप्लीट द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उसको उसके अगेंस्ट हम ल्यूकोवोरिन देते हैं. रिप्लीटिंग टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अगेंस्ट ल्यूकोवोरिन देते हैं. फिर आती बात एमीफॉस्टाइन की. एमीफॉस्टाइन ये हम देते हैं जब प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन इंड्यूस जेरोस्टोमिया. ठीक है, एमीफॉस्टाइन यू विल गिव इन प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन इंड्यूस जेरोस्टोमिया.